What were the early demands of the Congress? Early demands क्या थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की? So early demands were first increased participation of Indians in, oh sorry, the early demands of the Indian National Congress included: first one, increased participation of Indians in the Legislative Assembly. Legislative Assembly में जो Indians का participation है वो increase होना चाहिए. ये कुछ demands थी Indian National Congress की early period में. Then Indianization of civil service, जो civil services थी, right, जितनी भी post वगैरह जो थी, government service जो थी, उनमें Indianization होना चाहिए. Then next one was reduction of military expenditure and tax burden. अब जितने भी military expenditures होते थे वो बहुत ज्यादा burden create करते थे, tax burden थी, तो इन सब का reduction, इन burdens का reduction कम होना चाहिए. Then providing more fund for educating Indians. Indians को educate करने के लिए fund और ज्यादा मतलब provide किया जाए, ये उनकी demand थी. They did not demand independence in the early stage of the freedom. उन्होंने independence की demand नहीं की थी early stages में. Later they come to know that Britishers are not interested in developing India, so उन्होंने क्या demand किया? Independence demand किया. ठीक है, early stages में demand नहीं थी. Next question is, what made the Indian nationalists aware of unjust nature of British rule? अब कैसे इंडियन नेशनलिस्ट को पता चला दैट ब्रिटिशर्स आर सो अनजस्ट और सो अनफेयर towards the Indians? So the second half of 19th century saw the growth of national political consciousness in India. अब 19th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें जितने भी नेशनल पॉलिटिकल जितने भी इंडियंस थे उनमें क्या हुई, एक कॉन्शियसनेस आई. जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनमें द इंडियंस रियलाइज्ड the growth of British imperialism and started a long struggle for freedom. अब इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि दैट ब्रिटिशर्स वांट टू imperialize them, और वी कैन से दे वांट टू कंसोलिडेट देमसेल्फ. वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते थे पॉलिटिकली. और इसी के बाद क्या हुआ, एक लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्ट हुआ फ्रीडम के लिए. इंडियंस नेशनलिज्म रॉज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, और जिसके कारण इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग आई. एंड दे गॉट अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश. और फिर उन्हें ये पता चला कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. रेज ऑफ प्रेज, एफर्ट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस एक्सेट्रा. और वो क्या कर रहे हैं, जो एफर्ट्स थे जैसे इंडियंस को एजुकेट करने के, तो वो भी क्यों कर रहे थे? जस्ट बिकॉज दे वांट टू कंसोलिडेट देयर पावर. दे वांट कि जो एजुकेटेड इंडियंस है वो उनके लिए काम करे, राइट. और इसीलिए उन्होंने कुछ इंडियंस को क्या किया था, एजुकेट करवाया था, एजुकेशन प्रोवाइड की थी, राइट. So the answer is second half of the 19th century. So the growth of national political consciousness in India. The Indian realized the growth of British imperialism and started a long struggle for freedom. And Indian nationalism arose as a result of this awareness of economic exploitation by British, rise of praise, effort of educated Indians, etc. Right? Next one. Name some of political association formed after 1885. हमें कुछ political associations के नाम बताने हैं जो 1885 के बाद form हुई थी, बनी थी. The first political association to be formed was Landholders Society at Calcutta in 1838. Right? ये हमने ऊपर भी पढ़ा है. In 1843, the Bengal British Indian Society was formed. The Madras Native Association and Bombay Association was established in 1852. These were the political association formed in India before 1885. ठीक है, चार के नाम दिए हैं. फर्स्ट वन was
लैंड होल्डर्स सोसाइटी इन एट कोलकाता, सेकेंड है ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सेकेंड है मद्रास एसोसिएशन एंड नेक्स्ट वन इज बॉम्बे एसोसिएशन। ये सब कब फॉर्म हुई थी? 1885 के पहले। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट पॉलिसी। अब मॉडरेट पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी उसकी लिमिटेशंस क्या थी? The moderates had firm faith in British sense of justice and fair play। अब जितने भी मॉडरेट्स थे उनको क्या विश्वास था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। Hence they continued with prayers and petitions। और उन्होंने सिर्फ क्या की, जो प्रेयर्स करते हैं मतलब अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, राइट, वो चीज और पिटीशन रिटर्न फॉर्म में उसे एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड की, राइट। द ब्रिटिश हाउएवर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू रिक्वेस्ट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। टर्न द डीफ ईयर मतलब कुछ भी ना सुनना, राइट। जितनी भी रिक्वेस्ट कांग्रेस ने की वो सभी उन्होंने नहीं सुनी। The interference of the British and the continued economic exploitation and impoverishment of the country made the Indian nationalists realize that British government was not serious and just। और जितने भी डिफरेंसेस हुए वो कंटिन्यू रहे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू रहा, इम्पोवरिशमेंट मतलब जो गरीबी थी वो और ज्यादा बढ़ती गई कंट्री में। और इसके बाद इंडियन नेशनलिस्ट को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर नहीं है और वो इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है। Therefore they gradually lost faith in it। और इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे विश्वास उठ गया या विश्वास नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। और ये मॉडरेट पॉलिसी की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। अब ये जो लखनऊ पैक्ट है, ये जो एक्ट था, इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं, मतलब इम्पोर्टेंस बताने हैं। सो ये हमने ऊपर भी देखा है, फर्स्ट लाइन तो ऊपर के क्वेश्चन में भी है। The Lucknow Pact in 1916 was an important step in achieving Hindu-Muslim unity। लखनऊ पैक्ट 1916 के बाद हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हो गई थी। The war between Britain and Turkey led to anti-British feeling among the Muslims। अब जैसे ही ब्रिटेन और टर्की के बीच में क्या हुआ, वार हुआ, तब जितने भी मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। दिस ओपन्ड द वे फॉर कांग्रेस, और जिसके बाद कांग्रेस को सपोर्ट मिला, एंड मुस्लिम लीग यूनिटी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनिटी को क्या मिला, सपोर्ट मिला। बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड सेशन एट लखनऊ इन 1960। फिर दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम कमेटी थी, यूनिटी काइंड ऑफ कमेटी जो थी, उन्होंने सेशन हेल्ड किया, सेशन हुआ उनका 1916 लखनऊ में। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंटली ये डिमांड किया कि कंट्री में एक डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, मतलब एक पावरफुल स्टेटस होना चाहिए कंट्री का। द एक्सट्रीमिस्ट वर ऑल्सो रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस एट दिस सेशन। और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे उन लोगों को भी इस कांग्रेस सेशन में रीएडमिट कर लिया गया था, मतलब एंट्री दे दी गई थी। Okay, 11th one. Bring out the role of revolutionaries in freedom movement of India। अब रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, जिन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, जितने चेंजेस लाए हैं, उनका रोल बताना है हमें इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में।
So the revolutionaries were influenced by the movement of freedom in Italy, Ireland and Russia. ये इटली, इरलैंड और रशिया में जो फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए. दे do not believe in passive resistance and this led to revolutionary activity both inside and outside the country. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेसिव रेसिस्टेंस में बिलीव नहीं किया और जिसके कारण कंट्री के अंदर भी क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई और कंट्री के बाहर भी ये एक्टिविटीज हुई. Their method were entirely different from those of extremists and moderates. अब इनकी जो एक्टिविटी थी अपोज करने की, जो तरीका था, जो मेथड थी, वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट से बिल्कुल अलग थी. They formed secret societies. इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई. मैन्युफैक्चर्ड बॉम्ब्स, उन्होंने बॉम्ब बनाए. Imported them from फॉरेन कंट्रीज whenever possible. और फॉरेन कंट्रीज से भी उन्होंने क्या किए, इम्पोर्ट किए जब भी पॉसिबल हो पाया. दे वर इन्वॉल्व इन असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश एसोसिएशन. अब उन्होंने क्या किया, जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्हें भी अपनी ग्रुप में ऐड कर लिया. प्रोपगेटेड रिवॉल्यूशनरीज आइडिया थ्रू न्यूज़पेपर. और उन्होंने जितने भी आइडियाज थे उनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करने के, उसे कैसे प्रोपोगेट किया, मतलब उसे कैसे बढ़ावा दिया, through newspaper, books, pamphlets, and they assassinated officials and or attempted armed uprising with help of Indian soldiers if possible. और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या जितने भी उनके काइंड ऑफ हथियार थे वो यूज किए इंडियन सोल्जर्स के जब भी पॉसिबल हो पाया. ठीक है, सो आज के लिए इतना बहुत है, राइट.